दिला दिया करना. Okay, so the recording has started. So now let us begin. First thing, as I was saying, during this coming Saturday, that would be the last class, 8th को लग रहा है. So during the summer time, you should practice series and data frame in a nice manner, slowly, अच्छे से सारे example देखना, sample paper देखना, series और data frame के सारे question करना, कुछ भी doubt हो WhatsApp में भेजना, and we will be in touch during the summer time. So that is going to be a very good time to revise thing. होता क्या normal time में we move in the class and you did not get the time to revise. So utilize this time. Be perfect in these two topics. कल जो हमने देखा था deleting a data frame, that is the last topic that we have seen yesterday. एक बार quickly देख लेते हैं. 3 ways, 3 तरीके हैं किसी भी data frame को delete करने के लिए. First by using del, second by using pop, and third by using drop. Okay, people are still entering. Why is it so? Just a moment, beta. Okay, and the third one is by using drop. Drop थोड़ा सा नीचे में है. Let me raise it a little bit. Okay, ये हाँ चलो यहाँ ध्यान दो. Let us see the first two पहले. चलो बारी बारी देख लेते हैं. The first one is what we have seen is del. Del is a command. It is not a function. All right, and how to use it? Del, name of the data frame and name of the column which you want to delete. Similarly, pop जो है एक function है, it is called with the help of a data frame name df dot करके लिखते हैं pop and bracket में हम नाम लिखते हैं जिस भी column का हमें delete करना है. Remember the braces that are used. del में ये यहाँ देखो square bracket use हो रहा है जबकि pop एक function है, so it's using a function one here. पॉप की खासियत है इट हैज अ रिटर्न टाइप RETURN, रिटर्न कर रहा है. क्या रिटर्न कर रहा है? डिलीट करने से पहले दिखा दे रहा है कि दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू डिलीट, दिस इज द कॉलम. ऑलराइट, सो दिस इज हैविंग अ रिटर्न टाइप, दिस इज नॉट हैविंग अ रिटर्न टाइप. सिमिलरली द लास्ट फंक्शन दैट वी सॉ यस्टरडे, कल का आखिरी फंक्शन जो हमने देखा था वो था ड्रॉप फंक्शन. ड्रॉप हियर इट इज एज यूजुअल, इट इज आल्सो अ फंक्शन. ब्रैकेट में नाम लिखते हैं. एंड वन मोर थिंग एक्स्ट्रा दैट वी हैव टू मेंशन इज द एक्सिस. एक्सिस 0 का मतलब क्या होता है? क्विक वन, व्हाट डज एक्सिस 0 मींस? वर्टिकल. नो 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 नो, रॉन्ग. वर्टिकल बोलने से गलत हो गया. हॉरिजॉन्टल, रो. ठीक है बेटा. 0 एक्सिस मतलब होता है रो, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल. ठीक है. और by default 0 axis में ही ये delete करता है, but here we are saying we want to delete the column, H2 column, so axis is equal to 1. So this was the last thing that we have seen yesterday. Today's new topic, let us proceed to it. Okay, today we are going to see binary operation in between two data frame. Series याद है ना? Series में हम plus minus into divide किए थे. Do you remember it? Yes or no? Yes. सीरीज का याद है कि नहीं? S1 S2 नाम के सीरीज थे. एग्जांपल में S plus S1, S into S2, S1 into S2 करके करा था. Similar operation we are going to perform it here in data frame. But along with this we are having some methods also. यहाँ पे हमारे पास सीरीज में मेथड नहीं है तो यहाँ मेथड भी है. ऑपरेटर रखता था सीरीज में, यहाँ मेथड यूज कर सकते हैं. हाउ टू यूज इट? लेट्स सी एन एग्जांपल. चलो आ जाओ इस एग्जांपल को देखो. ओके, एज यूजुअल इंपोर्ट किया. स्टूडेंट नाम का क्या बनाया? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लाइन? डिक्शनरी. ओके, दो डिक्शनरी बन रही है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 1. जस्ट अ मोमेंट बेटा, जस्ट अ मोमेंट. सो दो डिक्शनरी यहां बन रही है, फिर कौन निकल गया बाहर, है ना? एंड दोनों डेटा फ्रेम बना. ये जो मैंने लाइन खींची यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी कंसेप्ट है. ओके, अब उसके नीचे दो प्रिंट आउट है. प्रिंट DS पहला डेटा फ्रेम, दूसरा डेटा फ्रेम DS1. क्या प्रिंट होगा? कैन यू इमेजिन इट? कैन यू गेट अ पिक्चर, गेटिंग अ पिक्चर ऑफ दिस वन? एक पिक्चर बन रहा है.
कि DS में क्या प्रिंट होगा और Yes, DS1 में क्या होगा. So let me show you that picture. Alright, वो देखते हैं हम क्या होगा. So let us see DS and DS1. Just a moment, let me clear the drawing here. Okay, and let me decrease it a little bit. ये देखो, ये आउटपुट में हम पहले दो आउटपुट को देख रहे हैं. नीचे का आउटपुट मत देखो. ये जो प्रिंट हुआ है DS हुआ है. ये मैंने जो बॉक्स बनाया. एज यूजुअल एक बार नजर मारते हैं ऊपर में अपने डेटा फ्रेम में कि क्या बोल रहा था. ध्यान दो, डेटा फ्रेम 1 में जो है DS में जो है क्या हो रहा है कि देयर आर टू थिंग्स. यूनिट टेस्ट 1 है और यूनिट टेस्ट 2 है और उसके मार्क्स दिख रहे हैं. ठीक उसी तरह स्टूडेंट 1 बना रहा है हमारा DS1, तो ये हमारा दूसरा डेटा फ्रेम होगा. दिस इज द फर्स्ट डेटा फ्रेम, दिस इज द सेकंड डेटा फ्रेम. चलो, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी हुई. नाउ लेट अस प्रोसीड विद सब्ट्रैक्शन. प्रिंट आएगा भाई, सब्ट्रैक्शन होने वाला है. एंड लुक एट द मेथड हाउ इट इज बीन कॉल्ड. ds डॉट सब ds1. ds में सब्ट्रैक्ट होगा ds1. लेट्स हैव अ लुक एट इट हाउ द मेथड इज बीन कॉल्ड. सीरीज में क्या होता था, किसी को याद है? सीरीज में सिंपल हम लिखते थे s प्लस s1. लिखते थे कि नहीं? ऑपरेटर yes, लगाते sir. थे. यहाँ पे हम मेथड से कॉल कर रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग द मेथड हियर, सो वी हैव टू यूज दिस मेथड. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस सब्ट्रैक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस. यहाँ पे हमें आउटपुट में साफ दिखेगा. हैव अ लुक एट इट. ये मेरा ds है और ये मेरा ds1 है. नीचे वाला ds1 और नीचे ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है. जस्ट सी द वैल्यूज एंड इंटरप्रेट इट. क्या सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 ही क्यों प्रिंट हो रहा है? यहाँ इंडेक्स नंबर यही क्यों आया है? ये कॉलम में Yes, sir. क्यों हो रहा है? सिंपल थिंग, ds माइनस ds1. सो 5 माइनस 3. कौन बाहर निकल गया? अरे, द रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट? कैन एनीवन कंफर्म? Yes, sir. Yes, It's on. yes, Okay. sir. Okay. Because I cannot see the recording button here right now. So 5 minus 3 is giving rise to 2. DAS minus DS1. 6 minus 3 is equal to 3. So that's why 3. Let us compare the last value. 10 minus 8. तो यहाँ इसलिए 2 दिख रहा है. Similarly, here if we will see 6 minus 10, तो minus 4 आना चाहिए, and that is what it is showing. So all the values are showing correctly. No problem with that one. Anyone is having any doubt? हमने command क्या दिया था? Please remember it. ds dot sub. subtract करना है. ब्रैकेट में मैंने लिखा था ds1. कहानी क्या होती अगर मैं इसको उलट देता तो? If I would have written ds1 dot sub ds, तो वैल्यू क्या क्या आएगी? सबको अंदाज मिल जा रहा है? Are you getting the thing? Yes, sir. Okay, so output generation. छोटे छोटे क्वेश्चंस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते. या फिर सब्ट्रैक्ट करके दिखा देगा और बोलेगा राइट दिस वन. ये कमांड बताओ क्या होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर कि हम ऐसा करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद सब्ट्रैक्शन. नाउ लेट अस मूव बैक टू द कोड अगेन. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, लाइन से सारे को देख लेते हैं. ठीक, लेट अस सी देन. हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड आर सब. अरे ये आर सब क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम. लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. देन देयर इज एडिशन. सिंपल एडिशन है. फिर एक मुझे दिख रहा है आर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है. मल्टीप्लिकेशन सिंपल है. डिवीजन, डिवीजन सिंपल है. यहाँ कोई आर वार वाला कंसेप्ट नहीं है. या वी कैन सी देयर आर टू थिंग्स मोर. यहाँ पे दो एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है. एक आर सब दिख रहा है और एक आर एडिशन का दिख रहा है, एडीआर. आर एडीआर. एडीआर ही लिखा है क्या? नहीं, एडीडी लिखा हुआ है, सॉरी. Sir, R add. R add लिखा है ना. हाँ, because it's blur, appearing blur to me. So R add. So add के आगे R, sub के आगे R. What is this thing? Don't know. Let us see what is happening here. क्या हो रहा है समझाना मुझे. So I am going to now witness R sub. R sub के लिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूँ ताकि दोनों डेटा फ्रेम भी दिखे. You zoom it at your own end. ठीक, ये मेरा DS है, ये मेरा DS1 है और नीचे के पेज में बता रहा है R sub. Can anyone tell what is happening in this one, please? Yes, sir. हाँ, एक बार पूरे वैल्यू को देख लो, एक बार ध्यान से देख लो
कि ये वैल्यू क्यों आ रही है। Yes, sir. ओके, प्रेडिक्शन हो गया। या बेटा टेल मी, चल जिसने बोला, स्वस्तिका बोली, कौन बोली? So, ma'am, Akshara. अक्षदा, चल बेटा अक्षदा बता, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कॉलम? सर जैसे सब्ट्रैक्शन में वो ds माइनस ds1 कर रहा था, अब इसमें वो ds1 माइनस ds कर रहा है। ओके, क्या हमें वो कन्वर्ट करना पड़ा? जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बोला था ds डॉट सब ds1, तो उसने क्या कर दिया कि ds से ds1 माइनस कर दिया। ds डॉट r रिवर्स सब्सट्रैक्शन ds1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r सब? r सब का मतलब क्या हो जा रहा है? रिवर्स सब्ट्रैक्शन। Reverse. ठीक है, तो वी कैन यूज r sub और वी कैन इवन चेंज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम एंड वी कैन परफॉर्म द सेम एक्टिविटी। कहने का मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ds डॉट सब ds1, ये हमने पहला कमांड पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला क्या होगा अगर ds1 डॉट सब ds हो, तो ये सबने अंदाज लगा लिया। इट मींस दैट दिस कमांड इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट इक्वल टू? ds डॉट r सब ds1। ये इक्वेशन जो मैं अभी भी लिखा, ये इंटरप्रिटेशन लिखा, ये सबको समझ में आ रहा है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बॉक्स की बात कर रहा हूं, व्हाट आई हैव रिटन इन द बॉक्स। ये दोनों एक ही है। डू यू अग्री? Yes, sir. Okay, so what is the second way of, without using r sub you have to inverse it, so you have to change the name of the data frame। अगल बगल बदल दो और ये काम बन जाएगा। या तो r sub यूज कर दो और ये माइनस ये होगा, what is there in the bracket? ds1 माइनस करेगा ds को। so this is what is happening here, reverse subtraction। ठीक, similarly let us have a look at what is happening in this one। उसके बाद क्या था? एडिशन था, R add। ऐड था, फिर आर ऐड था। लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। सीधा हम डेटा फ्रेम नहीं दिखेंगे, सीधा फंक्शन को देखते हैं। ये देखो, ये एडिशन सिंपल यूज कर रहा है, ये आर ऐड यूज कर रहा है, तो वहां यहाँ भी वही चीज हो रही है। इट इज सिंपली परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन बिटवीन टू डेटा फ्रेम्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेदर इट इज ऐड और आर ऐड। फिर हम देखते तो हैं, सर दोनों का हाँ आंसर तो सेम ही आएगा ना, ऐड और आर ऐड का, ऑफ क्योंकि कोर्स, एडिशन तो। हाँ एडिशन हैज नथिंग टू डू, मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब नहीं है, डिवीजन में है ही नहीं आर। ठीक, सो एडिशन इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। सर ऑलराइट, इसका कोई इफ अलग से रोल होता है आर ऐड और आर सब का? क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल यू, सर आर सब को हम सब से भी मतलब डॉट सब यूज करके भी लिख सकते हैं, उतना कोई ना बिल्कुल, हाँ लेंथ का बिल्कुल, फर्क पड़ता है ना नहीं कोई। नहीं नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग। होता क्या है बेटा, इसमें क्या है कि ये जस्ट इट इज प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा मेथड इज गिवन फॉर योर बेनिफिट। लो भैया आपके पास ये भी है, अगर आर सब नहीं भी बनता तो हमारा काम बन जाता, बट इट हैज बीन प्रोवाइडेड। ऑलराइट, दिस इज द ओनली थिंग। यस। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हैव अ लुक एट इट। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ds को ds मल्टीप्लाई बाय ds1 या ds1 मल्टीप्लाई बाय ds, दोनों एक ही मतलब है। या डिवीजन में इट विल चेंज, ds डिवाइडेड बाय ds1 और ds1 डिवाइडेड बाय ds, दोनों अलग अलग वैल्यू देंगे बिकॉज द वैल्यू may differ here in this case। So this is how it is giving out। Look at the float value, how the float it is calculating in division। So this is the simple method that we have studied about the four methods that we have seen, four not in fact six। एक हमने देखा, just a moment, एक हमने देखा subtraction, reverse subtraction, addition, reverse addition, multiplication के लिए मल and division के लिए div। So this is what we have seen here। Okay, let us proceed। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा complicated नहीं था। Okay, मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन, नाम बड़े बड़े हैं, काम बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं, सब सिंपल एक्टिविटी है। ठीक है, मैच करना है और ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट करना मतलब व्हाट डज दिस मीन? लेट अस हैव अ अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग वर्ड बहुत बड़ा बड़ा है, बट रिमेंबर वन कंसेप्ट, to perform broadcasting operation on two arrays of similar shape. This is what we are doing, similar shape। What does this shape means? The number of element, the number of rows should be same when we are talking about this one। Let's have a look at this example। example देखते हैं। एक pandas import किया,
ये एक हमने क्या बनाया है, ब्रैकेट क्या है भाई मुझे नहीं दिख रहा है, एक लिस्ट बन रही है ना, ये लिस्ट बन रही है, दूसरी लिस्ट बन रही है, पहले लिस्ट से डेटा फ्रेम बना, दूसरे लिस्ट से डेटा फ्रेम बना, df1 और df2, कोई भी बड़ी काम नहीं हुई है, वो ये नॉर्मल एक्टिविटी हुई है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये रहा मेरा df1 का आउटपुट, ये रहा मेरा df2 का आउटपुट, इज सेम, नथिंग, नो प्रॉब्लम विद इट, आई थिंक with index number, that is default index number. ठीक, now here instead of using the method add sub, it is using an operator. यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस, df plus df2। अब यहाँ पे मेथड ना यूज करके एक प्लस ऑपरेटर यूज किया जैसे सीरीज में रहता है, सो इट इज एप्लीकेबल हियर। An operator works not only in series but also in data frame, but a method always works in a data frame. Remember it. So दोनों को ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया? As usual 2, 5, 5, 6 and so on. And we are getting addition 1. ठीक, आगे बढ़ते हैं। Using a scalar or constant value. अब हम एक constant value को देखने वाले हैं कि how we can do it. Example, कोई पुराना डेटा फ्रेम है df1 में अगर मैं 50 करूं जैसे मैं सीरीज में करता था, सीरीज में भी ये चीज एप्लीकेबल था, डेटा फ्रेम में भी एप्लीकेबल है, प्लस 50, तो हर एक एलिमेंट के साथ 50 जुड़ जा रहा है, एंड दैट्स द आउटपुट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली सीरीज, जो सीरीज में पड़ा वही है पूरा, डेटा फ्रेम में भी वो एप्लीकेबल है। यस और नो? याद है ना सीरीज में भी ये एप्लीकेबल था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it is applicable in data frame also. चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट किया, ये हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया और डेटा फ्रेम बनाया। जब मैं अगर df को प्रिंट करूंगा तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। प्लीज हैव अ लुक एट इट, डू यू एग्री विद इट? नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, एक ये बनाया, ए को df बनाया, फिर तो रोज एंड कॉलम्स बना के उसने सब में ऐड कर दिया 50 और 100। डेटा फ्रेम में 10, हाँ अच्छा, ये पर सिंपल कमांड दे रहा है क्या df में? df is already created and df में it is redefining it again with this one. Okay. See, the array which is second data frame is of different shape as compared to the first data frame. जब ये वाला डेटा फ्रेम बना इस एग्जांपल में, तो इसका ये कैसा रहा? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट आउटपुट विल इट गिव? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट df लिखता तो क्या आउटपुट दिखाता मुझे? 0, 1, 2 कॉलम्स के नाम होते हैं और 0 और 1 रोज का। 0 और 1 रो का नाम रहता है, ये मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2 कॉलम का नाम रहता है, पहले वाले में रहते 2, 3 है 5, ना, 6 और 2, 5, अच्छा 2 है, 2, 5, 2, 5, 6 रहता, और दूसरे वाले में रहता 5, 8, 9। 589। ठीक, तो ये इसका आउटपुट आता। ये जो डेटा फ्रेम है इसका शेप अलग है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, वापस उसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, हम फिर से बोल रहे हैं कि भैया df is equal to 10, 50, 100। So now what is happening? Please have a look at it. ये जो 10, 50, 100 में हाँ अच्छा प्लस दिखा है क्या? हाँ एक सर, मिनट, हाँ df प्लस 10, 50, 100 वो सब में ऐड कर दे रहा है। हाँ, और ये मुझे दूसरी इक्वल टू लग रहा था, यही मुझे डाउटफुल लग रहा था। ठीक, df प्लस कर रहा है। सो नाउ व्हेन प्लस इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग कि हर एक में ये ऐड कर दे रहा है। जैसे हर एक में क्या ऐड कर रहा है, लुक एट द थिंग। पहले वाले कॉलम में 10, 0 कॉलम में, दूसरे कॉलम में 50, 1 कॉलम में, और 2 कॉलम में 100 का एडिशन कर दे रहा है। ठीक है, सो व्हेन द शेप वेरीज, दिस इज हाउ इट बिहेव्स। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं यहाँ पे 10, 50, 100 और 200 लिखता तो क्या हो जाता? एरर थ्रो करता। एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो नहीं करेगा, ये 200 को कुछ लेगा ही नहीं। नैन भी नहीं लेगा बेटा, np.nan लिखने पे ही नैन आता है। चलो एक बार एक काम करते हैं, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, लेट अस डू इट क्विकली। एक बार हम अपने पाइथन में करके इसको देख लेते हैं कि व्हाट हाउ इट बिहेव्स। import pandas as pp, उसके बाद क्या किया था उसने? अरे राम, क्या एक बेटा, उसने फिर ए नाम का ये बनाया था और df करा था। ठीक है, चलो ऑलराइट,
a is equal to पहली लिस्ट बनाई मैंने सपोज 10, 20, 30 और दूसरी बनाई सपोज 100, 200, 300 और ये ब्रैकेट क्लोज किया। पहला ब्रैकेट ओपन नहीं किया। अच्छा हाँ हाँ पहला ओपन नहीं किया तभी ये म्यूजिक बजा ये किया। ठीक है, उसके बाद df is equal to pd dot data frame और मैं बोलता हूँ a। ठीक है, और फिर प्रिंट df। चलो पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। लेट अस सेव दिस वन फाइल सेव IP2021 और हम अभी कर रहे हैं df.py। Let's run this one and see। क्या गड़बड़ हुआ भाई? सर इज इक्वल्स टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अच्छा मेरा क्या ब्रैकेट लगा दिया? मैंने कुछ और ब्रैकेट लगाया है सर क्या? आपने कर्ली अच्छा ठीक है। Give it some time, पहली बार pandas import हो रहा है। अरे बाप रे बहुत टाइम ले रहा है भाई रन होने में। हाँ चलो रन हो गया, ठीक है। So this is the data frame we are getting. Now what we have to do, हम करते हैं df प्लस 3 है ना 1000, 2000, 3000। Alright, and उसको again प्रिंट के पहले वो लगाना पड़ेगा ना शायद। नहीं एक ओरिजिनल डेटा फ्रेम रहने दो, फिर प्रिंट कर देता हूँ ना, फिर से प्रिंट कर देता हूँ df। ठीक है, यस अरे ताकि वो भी पुराना वाला भी दिखे और अभी वाला भी दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। So what do we see here? अरे ये तो चेंज नहीं हुआ यार। 1000 सर आपको प्रिंट df सर प्रिंट और फिर वो कर्ली मतलब ब्रेसेस में ही वो डालना पड़ेगा df प्लस वो 1000, 2000, 3000। अच्छा प्रिंट में ही रखना पड़ेगा। और वेरिएबल देना या फिर आपको कोई और वेरिएबल देके उसको इज इक्वल्स टू df प्लस ये करना पड़ेगा। एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है ये सीधा, ये भी तो df प्लस। सर वो उसका वो है ना, उसने प्रॉम्प्ट विंडो में ही किया है, इंटरैक्टिव में ही किया है। इंटरैक्टिव में ही किया है, ओके। सो लेट मी यूज द प्रिंट कमांड इन दैट केस। एक बार मैं इसको बदल देता हूँ रिपोर्ट। या फिर सर कोई और वेरिएबल नेम देके आप उसको इज इक्वल्स टू df प्लस वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो df तो हमने जो डेटा फ्रेम बनाया है वही रहेगा ना। चल df2 इक्वल्स टू अगर ऐसा करें और यहाँ पे df2 को प्रिंट करें, एक इसको स्टोर कर देते हैं पहले और सेव करके। नाउ लेट अस गो फॉर अ रन। हाँ हो रहा है, ये दिखा बेटा 1000, 2000, 3000 का हो रहा है। रुको फिर से रन करता हूँ फ्रेश विंडो में। सीट ये दिखा, ठीक। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग करनी थी वो करनी थी कि मैं 10,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी जोड़ देता हूँ, ठीक है, और फाइल सेव करके रन करता हूँ। तो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, लेट अस सी दिस इज व्हाट इट हैज थ्रोन एन एरर, वैल्यू एरर, unable to convert to series that is length must be 3 given 4। can you see it, ये एरर? यस सर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्या करेगा वो, एरर ही देगा। ठीक, ओके। सो बैक टू अगेन और ओरिजिनल थिंग कहाँ गया? ओके, सो we can perform even constant scalar operation on simple data frame as well as a group की shape बदल के हम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, then it is performing accordingly and it is giving us the answer। So
मिसिंग डेटा फिलिंग, हाँ अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल भी मैं बाद में देने वाला हूँ। और याद रखो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है, मींस व्हेन यू हैव टू परफॉर्म द 30 मार्क्स प्रैक्टिकल एट द एंड ऑफ द सेशन। तो डेटा फ्रेम का ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मिसिंग डेटा एंड फिलिंग वैल्यूज। It means that if suppose there is a NaN in our data frame, how we can fill those values, that is what we are going to learn here. Just a moment. एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ बेटा कुछ बोल रही है? Sir, I had doubt in the हाँ previous topic that you. हाँ please tell me. Tell me. So there we were adding in the columns that whatever the data frame was there, we used to add it into the columns and it Yeah. was displayed. Can we do the similar thing for a particular row also? Can we do it for a particular row? Row wise means a constant value with a row. Okay. Can it be done? Will it add? But what is the command that we will be giving? सर कुछ कॉमा यूज करके कर सकते हैं, मतलब जैसे df प्लस हाँ दो ब्रैकेट लगाए और उसके बाद फिर लिखा 10, 50, 100, फिर कॉमा, और फिर अगर कॉलम से कुछ भी नहीं ऐड करना है तो प्लेन वाला ब्रैकेट, और फिर मतलब जैसे बनाते हैं ना, जैसे ए बनाया है वैसे वहां पे मतलब वैसे स्टाइल while making time only can it be done? नो सर, no सर जैसे बनाया ए, हाँ जिस तरह जिस पैटर्न में बनाया कि दो ब्रेसेस, मतलब हाँ बाहर के एक ब्रेसेस एंड दो R, C वाले ब्रेसेस, तो हाँ। वैसे ही हम एडिंग में भी ऐसे कर सकते हैं df प्लस दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में। चल बेटा एक बार टेस्ट रन करना सब अपने अपने एंड में, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का जवाब मैं भी खोजूंगा कि कैन वी ऐड अ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रो। जैसे इस रो में मैं अगर 20 ऐड करना चाहता हूं तो हो सकता है कि नहीं। लेट मी फाइंड इट आउट स्वास्तिका, ठीक है? मैं भी कोशिश करता हूं इसको खोजने की कि कैन वी डू इट और नॉट। ऑलराइट, चलो आई विल सी टुमारो, आई विल गिव इट टू यू द आंसर दिस वन। Okay, let us have a look at this particular example where we have created a list here having different shapes. पहला वाला 5 एलिमेंट का है, दूसरा सिंगल है, फिर 2 है, फिर 3 है। So this is what we have declared and then we are turning it into a data frame. When we are printing the data frame, what is happening? Have a look at it. जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे ऑटोमेटिक नैन आ गया है। Can you see it? Now aim is that why we are learning this topic. Now we will be filling this NaN values with the whatever value we want. Okay, because the topic is, what is the topic we are learning right now? Missing data and filling values. NaN are the missing data and now we will be filling the values. So this is how we can create first we have learned to create a data frame having different shapes. So all those which are values are not there, it will be occupied by NaN. जैसे कि यहाँ कैसा दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 है, so it is occupied in the 0 row. This is going to be the first value, this is going to be the first and the second value, first, second, third value, and rest all are NaN. Can you see that these places are occupied by NaN here? क्योंकि इसकी value specify नहीं की है. Now how to replace these values? There are different functions for replacing it. First thing. हाँ बेटा, हाँ tell me yes. सर ये नैन के जो कॉलम्स है, मतलब अगर आप 0 कॉलम देखें तो उसमें कोई नैन वैल्यू नहीं है, तो वो सब इंटीजर पैटर्न में है। हाँ 5 8 10। no it is not integer pattern. फ्लोट में होगा। हाँ फ्लोट क्यों है? देख बेटा थोड़ा सा ध्यान लगा। Since all the first values are occupied of integer, it is showing integer. Here in this case what is happening, इस केस में क्या हो रहा है, बीच में एक नैन घुस जा रहा है। हाँ तो ये क्या कर रहा है, उसको फ्लोट वैल्यू ले रहा है। बाकी सब में देख फ्लोट वैल्यू ले रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे पूरे कॉलम में डेटा फ्रेम में तो पूरा ऑल टुगेदर एक साथ सबको वैल्यू पुट होता है ना, कि नहीं कॉलम वाइज। नहीं डेटा फ्रेम में एक ही चीज होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही कहा था, अगर पूरा इंटीजर है तो इंटीजर ले लेगा, पूरा फ्लोट है फ्लोट ले लेगा, पर जहां पे मिक्स फॉर्मेट लिख जाता है तो वहां पे जो ले लेता है डेटा टाइप, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम? द आंसर वुड बी इट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके चलो अब हम देखते हैं कि नाउ। हाँ बेटा बोल। सर तो वो फर्स्ट कॉलम को भी तो फ्लोट में लिख सकते थे, उसमें क्या इशू था? तो फिर इसने दोनों मिक्स करके ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? देख बेटा ये क्या कर रहा है, ये कंपाइलर डिसाइड कर रहा है कि वो रो कैसा दिखेगा, वो कॉलम कैसा दिखेगा। ठीक है, सिंस हमारी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, रो की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कॉलम में सारे वैल्यूज मिल जा रहे हैं उसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल से, और सारे वैल्यूज इंटीजर फॉर्म में मिल रहे हैं, तो इसलिए उसने इंटीजर ले लिया उसको।
दूसरे रो में क्या हो रहा है, दूसरे कॉलम में क्या हो रहा है, उसे 4 में से 3 मिल रहा है और एक नैन रह रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उसको जो इंटीजर वैल्यू आ रही थी उसको उसने फ्लोट बना दिया. इट इज द कंपाइलर विच इज डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप विल सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम. वो कंपाइलर डिसाइड कर रहा है, प्रोग्रामर नहीं कर रहा है. ठीक, इसलिए वो उसको 5.0 ले लिया, 4.0 ले लिया. क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे एक नैन दिख रहा है बीच में, इसलिए इसने इन सब वैल्यू को फ्लोट बना दिया. ओके. हाँ, अगर एग्जाम में तुम लोग इसे 5 लिखते हो या 8 लिखते हो या 9 लिखते हो तो इट इज नॉट रॉन्ग. प्लीज डू नॉट कंसीडर इट टू बी अ रॉन्ग आंसर. यार ये तो 5.0 लिखना था. नो नो नो, 5 भी लिखोगे तो इट इज परफेक्ट. नो प्रॉब्लम इन दैट वन. ठीक है. यस सर. नाउ मिसिंग. अब यहाँ जितने भी नैन है हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, उनको हम 0 बनाना चाहते हैं. सो वी हैव अ फंक्शन विद अस, अ सिंपल वन. वी आर गोइंग टू राइट अ सिंपल कंसेप्ट, df डॉट फिल नैन. नैन की वैल्यू फिल कर दो, किससे कर दो, 0 से. नाउ हैव अ लुक एट इट. तो ये क्या किया, जहां जहां नैन था वहां वहां इसने 0 ला दिया. So a simple command and you can fill a 0 value to it by using dot fill na. Fill na, na, and the value 0. Now we'll see it. इसमें और भी examples है, उसको देख लो. Have a look at it. चलो, ये df बना हुआ है nan के साथ. And now this is what is specified. Can anyone predict what is happening? क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो. fill na के साथ अब एक कुछ पैरामीटर डाल दे रहा है. थोड़ा सा जूम कर सर लूं. उसने कॉलम नंबर कॉलम हाँ, नेम एक स्पेसिफाई कर दिया. ओके. सो तो सर जैसे 0 में अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू होती है तो माइनस, कोई भी नैन वैल्यू होती है तो -8 कर देता. बट हमारा 0 कॉलम पूरा फिल है तो कुछ नहीं हुआ. एकदम फिर सही. वन कॉलम है उसमें एक ही वैल्यू नैन थी तो उसमें से -10 कर दिया. ठीक और है. कॉलम नंबर 2 में 2 वैल्यूज थी तो उसने दोनों को -5 कर दिया. -5 कर तो दिया. उसको और 3 सक्सेस 4 के बारे में कुछ बताया नहीं है तो नैन नैन रहा. कुछ बताया नहीं. ठीक है, इसलिए नैन नैन रहा. करेक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो बेटा. पिछली बार हमने फिल ना 0 कर दिया था तो उसने सारे नैन को 0 कर दिया. पर अब हम कुछ डेफिनेट चाहते हैं, कुछ मतलब डिफरेंट वैल्यूज चाहते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चाहता है कि अगर ये 0 कॉलम में कोई भी नैन होगा तो उसकी वैल्यू -8 हो जाए. पर यहाँ पे कोई भी नैन नहीं है तो उसने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया. 1 कॉलम में हम चाहते हैं कि जो भी नैन है वो -10 से रिप्लेस हो जाए. तो हाँ, उसे एक नैन मिला था, उसने -10 कर दिया. ये एकमात्र नैन जो 1 में मौजूद है. उसी तरह 2 कॉलम में वो चाहता है कि जितने भी नैन है -5 बन जाए, तो इसने -5 कर दिया. यहाँ पे इसका कलर चेंज करना भूल गया है, ये भी चेंज हुआ है ना. ये दोनों को देखो, 2 नैन है 2 कॉलम में, तो उसने दोनों को चेंज कर दिया. ये पहला -5 इसको बनाया और दूसरा -5 इसको बनाया. एंड सिमिलरली 3 4 के बारे में कुछ नहीं बोला तो नैन नैन रहा. नो चेंज. ओके. पैरामीटर देख लो, थोड़ा ध्यान दो. पैरामीटर कैसे यूज कर रहा है. देयर इज अ कॉमा, नेम ऑफ द, हाँ नेम. ये इस कैसे करके किया, की पॉइंट और वैल्यूज. चूंकि फिल ना यूज किया है तो ओनली नैन वैल्यू विल बी फिल्ड बाय दैट एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक, in the form of a dictionary.